Great. So, yeah, thank you for giving us the privilege to mute you guys. Thank you. Okay, so welcome everyone in today's evening session, which is our lovely tribe meetup that we all look for. So in this meeting, we all know that what are we going to talk about? The first and foremost thing is we're actually welcoming each and every one of you in today's festival time. It is not easy to come here for the session and to listen to us. We are so deeply grateful to each and every one of you. And I'm sure that you are having your journals and your pens and a wallet with you. Wallet को अपने पास आराम से रखिए because we will be needing it during the course of the time. So सबसे पहली बात यह है कि आज हम लोग आपको आपका मनी के साथ रिश्ते कैसा है उसके बारे में बात करेंगे कि हाउ easy going are you with your money, what is your relationship with money, how you can lift the frequency that you have. जैसे सौम्या ने कहा शुरू 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 में कि we need to have very high frequency to attract money in our life, and that is not a impossible task. This is very easy to attract money in a life. The thing is we have to keep ourselves in a great frequency that we all know. So the first and foremost thing comes here is to respect money, have a very wonderful relationship with money. So money actually, what do you think that the most of the billionaires that you know, you can name now, look at Elon Musk के बारे में देखो आप, you go to Oprah Winfrey, they were not billionaire by birth. वो बिलियनियर बने हैं अपने बूते पर, अपने माइंडसेट के कारण, है ना. सो व्हाई व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इज वी टू हैव that kind of mindset, because of which we'll be able to attract money in our life in whichever manner actually you want to. So we often hear this phrase कि it takes money to make money, है ना. पैसा पैसे को बनाता है, बहुत बार सुना है हम लोगों ने कि जितना भी पैसा आपके पास हो उसके कारण ही आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है. बट टुडे इफ वी टेल यू दैट मनी इज एक्चुअली द गेम ऑफ योर माइंडसेट. इट इज ओनली अस हु मेक मनी ड्यू टू द माइंडसेट दैट वी हैव इन आवर माइंड, है ना. तो माइंडसेट के कारण ही आप अपने लाइफ में जहां पर भी अभी स्टैंड करते हो, नो मैटर वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ, कितना आपका बैंक बैलेंस है, कितना आपके पास वेल्थ है, कितना आपके पास फिक्स्ड एसेट है, उसका कोई भी मैटर नहीं है. आप इसी वक्त अपनी रीप्रोग्रामिंग करके अपने माइंडसेट को बना सकते हो. आपका माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि आप मनी को चारों दिशा से अट्रैक्ट कर पाओगे. सो always remember this, that money is something that is not coming from the bank, it is coming from your brain. If you have that kind of mindset, you will be getting money very easily and effortlessly in your life. So here we'll be sharing a screen with you where we'll be putting some questions. आप उसके बारे में बताएंगे कि आपका मनी के साथ कैसा रिश्ता है, आप जो है मनी को किस रूप में देखते हो. मनी को, जैसे सौम्या का रील भी आया था, मनी को आप क्या बेस्ट फ्रेंड के रूप में देखते हो. मनी की बात सोचते ही आपके मन में कैसा विचार आता है, हाउ कंफर्टेबल और डिसकंफर्ट यू हैव. सो जो भी आपका कंफर्ट लेवल होगा मनी के साथ या डिसकंफर्ट लेवल होगा मनी के साथ, वो आपका अभी का प्रेजेंट होगा. कि इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद स्पेंडिंग मनी, है ना, सो दैट मीन्स यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद मनी. एंड इफ यू आर अ लिटिल अनकंफर्टेबल अबाउट मनी, मनी की बात सोचते ही अगर आपको चिंता हो रही है, तो फिर दिस कोर्स इज एक्चुअली फॉर यू, विच वी आर गोइंग टू लॉन्च फ्रॉम नवंबर. सो प्लीज think this, that it is not tough to have money in your life. It is just a matter of changing your mindset. Our brain is very fluid in nature. Whatever we are giving thoughts, है ना, जो भी हम thoughts brain को देते हैं, अपने mind को देते हैं, it solidifies and it is getting translated in our life. Any kind of thought that you're giving. तो इट इज ऑलवेज अ गुड न्यूज टू नो कि आपके जो भी मनी माइंडसेट है, 7 साल की उम्र से ना बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत एक्टिव होता है. 7 years तक बच्चे का सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है, उसका कॉन्शियस माइंड काफी कम एक्टिव होता है. तो बचपन से लेकर जो हम लोग सुनते आ रहे हैं मनी को लेके, उसके कारण हमारा माइंडसेट बन रहा है ना. और अब अच्छी बात यह है कि किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव में कभी भी आकर हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं. वाई? बिकॉज आवर ब्रेन इज वेरी वेरी फ्लूइड इन नेचर. whenever you want, you can rewire your brain completely, and to get your brain rewired here at Brain to Body Revolution will be very easy for you. Yeah, so let us just share the screen with all of you. Soumya, can you please do that favor? Thank you so much. Yes. So उसको एक questionnaire होगा, आप please उस questionnaire को करिए, take your time and do that. Yeah, we will be sharing the money blueprint questionnaire है, ये आपके लिए एक टेस्ट है छोटा सा, आप इसको करिए. इसको थोड़ा सा जूम कर देना. हाँ, एक मिनट. Is it visible? Yeah, perfect. So guys, this is the questionnaire. Please do these questions. Only 5 questions are there.
अब हम लोग देखते हैं कि इसके क्वेश्चन को करके आपको कैसा फील होता है, आपके कितना, और ज्यादा सोचना नहीं है इसको लेकर, है ना, सोचना बिल्कुल भी नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो आ रहा है ना, बिना सोचे आपने वो लिखना है। Just repeat that question या once. जस्ट अ मोमेंट, आई वाज जस्ट चेकिंग किसका ये लाइन लग रहा है, तो मे बी वी कैन एनोटेट इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन आई थिंक ऑफ रिच पीपल माई फर्स्ट थॉट इज डैश। सो जब हम मुकेश अंबानी के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं, या फिर हम लोग एलन मस्क के बारे में सोचते हैं, क्या दिमाग में आता है? क्या आपके दिमाग में ये आता है कि वो बहुत एरोगेंट है? क्या आपके दिमाग में ये आता है कि मनी के पैसा जो है उसके लाइफ में इतना ज्यादा है कि वो किसी और के बारे में नहीं सोचता? है ना? तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको लिखिए। या फिर अगर आपको लगता है कि अगर एलन मस्क से मुझे ना बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है, क्योंकि एलन मस्क जो है अपने 10 साल का काम 1 साल में कर लेता है, बहुत जल्दी जल्दी कर लेता है, तो क्या मुझे एलन मस्क से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है? तो वो आप लिखिए कि एलन मस्क या ओपरा विनफ्री या मुकेश अंबानी, इन सब का नाम, अडानी, इन सब का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या विचार आ रहा है, पहला विचार वो आप लिखिए। सो ओपरा विनफ्री के बारे में हम सभी को पता है कि ओपरा विनफ्री जो है बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आई थी, बहुत ही ज़्यादा ऐसा बैकग्राउंड था उनका, लेकिन फिर भी वो आज एक बिलियनर है। कैसे वो बिलियनर है? अपने माइंडसेट के ऊपर। जब से उन्होंने ये बोलना शुरू किया ना कि मनी इज कमिंग टू माई लाइफ इजीली, तब से उन्होंने इस बात को, अपने ब्रेन को रिवायर कर लिया एक नया थॉट देकर, तब उनके लाइफ में ये प्रगति होनी शुरू हुई थी। Okay, so if you are done with the first question, let us move on. The second question is, when I was a child, money in our house was described as क्या? हिंदी में, जब मैं बच्चा था या छोटी बच्ची थी, तब हमारे घर में पैसे को कैसे बताया जाता था? क्या बोल के बताया जाता था? पैसे के बारे में आम चर्चा क्या होती थी? हम्म, तो ये हमने लिखना है कि पैसे को लेकर क्या ये बोला जाता था कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसे को संभाल के खर्च करना चाहिए, पैसे को सोच समझ के खर्च करना चाहिए, आपकी सैलरी का 70% हिस्सा आपको सेव करना चाहिए, है ना? या फिर हम लोगों ने आपस में मम्मी पापा को सुना था कुछ बातें डिस्कस करते हुए कि भाई पैसे को संभाल के खर्च करो, तुम बहुत ज़्यादा खर्च करती हो, इतना पैसा नहीं है, बच्चों को आगे पढ़ाना है, कैसे करेंगे? तो क्या ये सब बातें आपने सुनी थी? तो क्या आपके घर का नॉर्मल टॉक क्या रहता था पैसे को लेके, वो आपने देखिए, यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं कर रहा, ये आपके पास लिखा हुआ रहेगा, है ना? तो आप इसको लिखिए जरूर। We have all come from that kind of background, है ना, almost similar kind of background, but now we have changed our life. But the thing is, what you were there, like when you were a child, what kind of talk was going on in your house? Do not think much, बस आप लिख लीजिए जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को सारी बातें याद है अच्छे से। And what we are today is all because what we were in the childhood. जैसे हम थे तब वैसे आज हम लोग हैं, हमारा पूरा व्यक्तित्व उसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे याद है, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो मेरी दादी जो है ऐसे बोलती थी, मेरे पास जहर, एक्चुअली उनके पास बहुत था, शी एक्चुअली वाज एन एफ्लुएंट लेडी, बट स्टिल शी वुड ट्राई टू हाइड हर मनी, है ना? शी वुड से मेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है। तो ऐसी बात कुछ सुनी थी आपने? नाउ द थर्ड क्वेश्चन, आई फील गिल्टी रिगार्डिंग मनी की बात हो रही है यहाँ पर। आई फील गिल्टी व्हेन आई डैश।
अब इसमें ओवर स्पेंड हो सकता है, अंडर स्पेंड हो सकता है। अब दिवाली चल रही है, सभी के घर में शॉपिंग हो रही है। क्या कैसा कंफर्ट लेवल रहता है आपका कि आप मार्केट में जब जाते हो, सामान लेने के लिए जाते हो, आपके पास गिफ्ट्स आते हैं तो आप भी गिफ्ट्स देते हो, तो आपको क्या लगता है कि अच्छा किसी ने इतना महंगा गिफ्ट दे दिया तो मुझे भी इतना ही का देना पड़ेगा? क्या आप बैलेंस करने की कोशिश करते हो, तोलने की कोशिश करते हो कि उन्होंने आपके 2000 का गिफ्ट दिया है तो आपको भी 2000 का गिफ्ट देना है? वॉट इज द काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू आर हैविंग इन योर माइंड राइट नाउ? आर यू फीलिंग गिल्टी अबाउट स्पेंडिंग कि मुझे इतना सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, या फिर मेड को अगर बोनस देना है तो कैसा फील हो रहा है आपको? जो भी आपका डोमिनेंट थॉट है ना गिल्ट का मनी को लेकर, उसको आप लिखिए यहाँ पर हिंदी में। मुझे अपराध बोध बोध होता है जब मैं पैसे खर्च करती हूँ या पैसे बांटने लग पड़ती हूँ, है ना, अपने औकात से ज्यादा खर्च करती हूँ, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, बिकॉज दीज आर जस्ट वन लाइनर्स, इतना ध्यान नहीं देना है। बिकॉज जब हम 1 मिनट से ज्यादा का टाइम देते हैं ना, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड जो एक्टिव हो जाता है, सबकॉन्शियस हमारा दब के बैठ जाता है। तो हम अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं, सबकॉन्शियस माइंड से सोचेंगे इस बात को, ठीक है? तो आई बिलीव पीपल विद मनी आर, कैसे होते हैं पैसे वाले लोग? क्या वो इगोइस्टिक होते हैं आपकी नजर में? क्या वो ऐसे होते हैं कि बहुत जेनरस होते हैं? क्या वो ज्यादा पैसे वाले लोग खुल के खर्च करने वाले होते हैं या फिर कंजूसी करने वाले होते हैं? क्या आपका माइंडसेट ये है कि ज्यादा पैसे खर्च करने वाले लोग अपने नौकरों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, या वो अपने नौकरों के साथ बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी ये अपनाते हैं? तो क्या होते हैं, आपके माइंडसेट क्या बोलता है कि व्हाट यू बिलीव द पीपल विच विद मनी आर? के लवली अश्वनी, वंडरफुल। Ashwini, if you can, let then please write down in the journal if you can, right? Or Yeah, if you do not have, I'm okay, you are writing. not having, Yeah. you're not having your journal at this moment, okay? Then just go ahead and write in the chat box only. Writing both. Great, great, great. Lovely, lovely. हमारे बहुत सुनने सुनते आ रहे हैं ना हम लोग कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर देता है, पैसा लोगों को लालची बना देता है, जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना हार्श हो जाता है। तो ये हमारे थॉट्स हैं, अब आपके क्या है वो? काइंडली म्यूट योरसेल्फ गाइस। थैंक यू। मैं बोल के बता सकती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, एक बार हम लोग पूरा कर लेते हैं क्वेश्चन है, फिर हम हाँ बोल के पूछ लेंगे, है ना? हाँ ठीक। मैं भी हाँ यही जी, कह रही थी कि कंप्लीट तो हो चुका है, हम जब आप पूछोगे बता देंगे। श्योर श्योर, थैंक यू। Okay, the fifth question now is when I receive money, I usually feel, जब भी मैं मेरे पास पैसा आता है तो मुझे कैसा फील होता है? क्या मुझे खुशी होती है, या मुझे ये डर लगता है कहीं ये पैसा चला तो नहीं जाएगा? आ तो गया, अब चला तो नहीं जाएगा? या फिर मेरे पास कम आया, मेरे तो खर्चे इतने ज्यादा है लेकिन वो पैसा मेरे पास कम आया है ना? क्या क्या सोचते हो आप उस समय पर? एंड हियर नो वन इज गोइंग टू जज यू कैन फ्रीली शेयर योर थॉट्स। पूरी तरह से हम सभी एक हैं, सभी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, सब जानते हैं। This is one platform where no one is going to judge you for anything. Okay. Is it over, guys? Yeah. Okay. Kindly raise your hand, whoever wants to discuss about it, बताना चाहते हो कि आपने क्या लिखा है। हम शॉर्ट रखेंगे उसको, ताकि हम लोग अपने पूरे के पूरे इस वेबिनार को समय से ख़त्म कर सकें, पूरा कर सकें, ताकि हम लोग मैक्सिमम चीज़ें आपको दे पाएँ। तो हाँ जी, तो क्या क्वेरीज थी और आपने आंसर्स क्या लिखे? मोनिशा जी, ओवर टू यू।
जब मैं अब ग्रेटिट्यूड जर्नी में आने के बाद मैं क्या सोचती हूँ, जब मैं अमीर लोगों के बारे में सोचती हूँ तो मेरे मन में यही आता है कि वो प्रभु के शुक्रगुजार रहने के साथ साथ बहुत स्मार्ट, दानी और समझदार व मेहनती होंगे, क्योंकि मेरे सर्कल में जो अमीर लोग हैं ना, वो बहुत भगवान जी को मानते हैं। और अब मैं अंबानी का देखती हूँ कि वो उनका हर काम स्टार्ट ही से होता है। उनकी सुबह छत से होती है, सूर्य चढ़ने से पहले पूरी फैमिली ऊपर पहुंच जाती है। शॉर्ट में बता रही हूँ। सेकंड में था कि जब मैं बच्ची थी तब बोला जाता था जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो, मम्मी बोलती थी। और पैसा जोड़ के रखो मुश्किल वक्त के लिए, और पैसे पेड़ों पे नहीं लगते। ठीक है। बिल्कुल, काफी कॉमन है ये तो, है ना? हाँ, यही हाँ कॉमन चीजें तो हैं जो हमारी लाइफ में थी। फिर हम्म। गिल्टी होती थी, अब नहीं होती। मैं पिछला बता रही, गिल्टी होती थी जब मैं अपने ऊपर खर्चा करती थी, मैंने साथ ही लिख दिया, अब नहीं होती। अब दीप्ति मैम ने बोला खर्चो, या अभी पूनम दीदी बताएंगे आपको। अच्छा, फोर्थ मैं शॉर्ट शॉर्ट में ही बता रही हूँ, लिखा तो मैंने। फोर्थ, थैंक यू। जिनके पास पैसे हैं वो अंदर से भी बहुत दयालु होते हैं, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में जो पैसे वाले लोग हैं वो बहुत दयालु हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, साफ मन के होते हैं, और प्रभु को हमेशा अपने हाजिर नाजिर जानते हैं। हम्म। ठीक है। लास्ट वाला मैंने लिखा है, मुझे जब पैसा मिलता है तो मैं खुद को बहुत अबंडेंस में फील करती हूँ, ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मतलब 10 रुपए भी मिल जाए तो मैं बोलती हूँ लग गया, मेरा जैकपॉट लग गया। आज सफाई करते हुए फटे हुए 20 के नोट मिला, पर मैं उसमें भी बहुत खुश थी। पहले ये चीजें नहीं थी, एटलीस्ट पहले ये इस चीजें नहीं थी। सो नहीं। दिस इज व्हाट योर माइंडसेट इज नाउ। ये अभी का माइंडसेट है हमारा, जिसके कारण जो आपने अपने ऊपर काम किया है उसके कारण आपके मनी के बिलीफ और आपका माइंडसेट बदला है ना? तो ये काम करने के बाद है। प्री वाली मोनिशा शायद ऐसी नहीं थी। पोस्ट वाली मोनिशा, जब से मोनिशा ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिसेस करती हैं और जब उनके लाइफ में ये अवेयरनेस आई है, तब से मोनिशा चेंज हुई है। लवली, थैंक यू सो मच मोनिशा जी, थैंक यू सो मच। सो पिछली लेट। मोनिशा पैसा ऐसे जोड़ के रखती थी कि मेरे घर वाले बोलते थे कीड़े लग जाएंगे, प्लीज खर्च लो। हाँ, सर्कुलेशन नहीं करती थी। लवली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके मोनिशा जी, नाउ वी गो टू सविता। सविता, अब हम लोग सविता जी को जानते नहीं है, लेकिन सविता बैंगलोर में रहती हैं, बहुत ही प्यारी। और सविता के लिए हम लोगों को बहुत ही ग्रैटिट्यूड अगेन करना चाहिए, बिकॉज शी इज वर्किंग विद Amazon डे एंड नाइट फॉर अस, फॉर पीपल लाइक अस, जो कि हम लोग एकदम फटाफट से सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। तो सविता, पीपल लाइक सविता आर बिहाइंड Amazon, सो थैंक यू सो मच सविता फॉर दैट। यस सविता। Thank you, Priya. So on the first question, right, when I think of rich people, my first thought comes is great, successful people, person. And with that, at the end is lucky people also, even we struggle, but we are not at that level. हम्म। Then the second question, when I was child, the thought was, it's money is precious, uh, and needs to be spent carefully and save it. So that was the overall anthem of the Yeah. house. हम्म। Budget, monthly budget. Okay, you never should exceed the monthly budget, and whatever remains should go into the savings. हम्म। And the savings are your life savior. हम्म। And that to spend on the basic things, not on Yeah. all the luxuries or anything. हम्म। Then I feel guilty when I spend money on luxury. Basic things I'm fine. Like, if I have to buy some Because costly. it was pre-told to you, it was, you were domesticated like that, Yeah, na bachpan mein? correct. Yes. So if I have to spend on a expensive sari, I'm like, no, it's a waste. Or if I have to spend something, इससे अच्छा कि branded चार shoes. चार सस्ती साड़ियां ले लूंगी मैं, है ना? हाँ, 4 बार पहन लूंगी। और ब्रांडेड शूज, अरे नहीं, एक नॉर्मल शूज हर साल चेंज कर सकती हूँ, एक ब्रांडेड शूज 4 साल के बदले में। इट्स लाइक दैट, हु विल स्पेंड सो मच ऑन द चप्पल, है ना, एक दो चप्पल Yeah. से चल जाएंगे। माय हस्बैंड स्टिल सेज कि हम्म। कितने चप्पल, एक आई गो टू ऑफिस विद ओनली वन चप्पल, इवन आई हैव 5 6। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मेक चॉइसेस। सुबह उठकर कौन सोचेगा कि इन 4 में से कौन सा पहनना है, एक ही रखूंगी, तो चॉइस कम है। हम्म। So I feel guilty to spend on my luxuries. हम्म। And I also feel guilty when it gets wasted because of some of my mistake. Like, हम्म। I did some wrong investment, or I You bought something, you do or I not take got it them cheated. as lesson. You do not take them as a I lesson. You take, just, हाँ, हाँ, you just be guilty about it कि यार why मतलब did क्यों I? हो गया ऐसा, मुझसे ही Yeah, होना था and all. हम्म। correct. Yeah, if I get cheated, हम्म। and if it was a stupid mistake, I feel कि अरे यार, ये इतनी भी दिमाग नहीं थे, मुझे किसने बोल Yeah. दिया, and I did that one. Sabotaging Uh, yourself sometimes, है ना? Correct. Yes, yes. So then, I believe people with money are, if they are self-made, I have two opinions there. Like, if they are self-made, I feel okay.
wow, they are so successful and they have come from the same background and they're like, achieving so many things. And I feel that as inspiring. But then if they are owning from their ancestral property, then I have a double mind. I keep watching them. Okay, aaya hai property, so he's Yeah. like very Yes. egoistic, or Mm. not everyone. There are anomalies, but according to my experience, most of Yes, them who yes. don't earn have that egoistic nature. There are few anomalies. I've seen the people, but very less. हाँ, तो वो बहुत हर किसी चीज में होता है ना सविता, we cannot हाँ, generalize that. correct. Yeah, Hmm. because they don't understand the effort Hmm. behind it. So it's Hmm. something. Hmm. So I keep telling my son also the same thing कि ऐसे इतना नहीं होना चाहिए. हमारी बचपन में हमारे लाइफ ऐसे होता था, तुम्हें इतना Yeah. मिलता है, and you are fibbing about this. That Hmm. goes on. Hmm. And the last question, when I receive money, how do I feel? So I feel happy if it is like earned or if I put effort for it. I Hmm. feel uncomfortable if it is gifted from someone. Suddenly I start कि ये क्यों दे रहे हैं gift, इतना बड़ा gift क्यों I दिया? know. What do I Yeah. do? Why should they give it? Hmm. Beyond thinking, should I return? Like, I should give the same kind of gift. I'm like, क्यों देते हैं? That is Hmm. uncomfortable, even if it is from parents or anyone Yeah. else also. And I feel like do not want if I don't know the source. Okay. तो अगर हाँ, if I don't know from where it is coming, then I don't want. I am not very sure कि ये मेरा hard earned money है, ये मेरे पास जब इसलिए आ रहे तो then I don't want it. It's कहाँ से आ रहा है, जहाँ से चले जाए. That is my answers. Okay. So the first and foremost thing here is you have to completely wash off what you have learned from there. You have to debunk that memory that is actually stored in your mind. And then what we're doing is that is why this course is for you, because you are actually doing all that which has happened with you and you're repeating with your son now. Right? So abundance wants to come to you in any form. She earns very much, guys. Amazon में बहुत अच्छे position में है हमारी सविता, बहुत अच्छा करती है. But still she is of this mindset only because from the childhood she is carrying those memories. है ना? क्योंकि वो memory ने हम लोगों को बनाया है, हमारे skin को बनाया, हम लोगों को ये समझ में दी है. So we have to come out of this mindset. Then only, actually, Savita, there is no one else. It is always you and your universe. If you are getting as a gift from your mom, dad, from anyone, or any precious gift, or what is expensive gift, whatever, that is the giver is always the universe. If you're getting your salary from your Amazon, that is also the universe who is giving you. And if any person is cheating you, he's trying to teach you something. This situation is going to teach you something. That is also giving. Universe, again, that is the person that person is also universe. He wants to give a shiksha to you, a teaching to you, that Savita, this is not the right thing. You can like next moment, next time, you do not repeat this. That's a teaching. So it is always, Savita, you and universe. The communication is between only you and universe. चाहे वो रिवॉर्ड हो, चाहे वो किसी तरह का पनिशमेंट हो, चाहे वो कोई प्राइज हो, चाहे डिसीट हो, whatever it is you and your universe. Thank you so much for being so generous about discussing your things, and love you. Thank you so much. Thank you. And we assure you that we'll be able to remove all those limiting beliefs. Definitely. Thank you. Yeah, sure. Thank you. Okay, now we have Ashwini. Yes, Ashwini. Yes, our lovely you, Ashwini. Yeah. She's from Belgaum, na Ashwini? Yes. Yeah. Let me just add. So yeah, money always the people who have money always inspires me. I feel they are very blessed. Also, they are very comfortable. They don't have to worry about the basic necessities. So they'll go beyond their comfort zone and do something which not we people can't do. So that inspires me a lot. That is, money gives them independence to spend. Independence, and also they'll come Confidence. out of yes, everything. Bachpan se I was like money ke related. You should save money, be careful while spending, and plan accordingly. You can get whatever, but plan accordingly. This is the most of the times I have heard from my parents. Guilty ये होता है कि I have I started earning. I have responsibilities a lot. I don't have anything who can support me financially. So I have to plan where if I'm buying something which is my dream or something, I have to sacrifice one thing. I can't get all at that time. That is your belief that to have one thing, I have to sacrifice another. Yeah, I have to plan like that. So, but eventually, before, I'm able to fulfill few now, not just one. I think again it will increase. Definitely. As time goes, I will get all what I want. I feel that now. Definitely. That's a surety. That is the working on your mindset. Yes. Yeah. Now next The one. situation I had 10 years before is totally changed now. So I feel Lovely. blessed. Yeah.
The people who are rich, I feel they are very blessed. They have all the comfort and luxury. They have as the same thing. They are all independent. They can do whatever they want to do. So yeah, I feel they are very blessed and they're very comfortable and not lucky, because most of the people are not lucky. They are self-made persons. Hmm. So I think they worked Yeah, it out. 85% of them almost are Yeah, self-made, they yeah. worked it out very hardly and they got एंड यू नो what. व्हाट, एक और चीज है ना, जो सविता भी बोल रही थी, द वन हु गेट इन हेरिडिटी ना, इफ दे आर नॉट दैट जेनरस एंड इफ दे आर नॉट सेल्फ मेड, दे कैन नॉट सर्वाइव देयर, सविता, है ना, वो Yeah. सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. लुक एट अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी, यू विल सी द डिफरेंस. The one who is actually, he too was born with that silver spoon, but then Anil Ambani could not grow that much. And Mukesh is doing, because Mukesh is working hard on this, and he has that network, but Anil does not have that. That is why Anil is now, like, his companies got bankrupted and now Mukesh has taken over everything. So this is the fact. If you are there, that means that you need to have that mindset. वो mindset होना पड़ेगा, चाहे आप silver spoon से पैदा हुए हो, चाहे आप नहीं पैदा. You have to have that mindset in order to carry over also. It is not कि मैंने कमा लिया. कुबेर का खजाना भी खत्म हो जाता है एक्चुअली. अगर कुबेर भी अपना खजाना जो है हम करने ही अपना स्प्लर्ज करने लग पड़े या समझ के वैसे ना करने लग पड़े, तो वो भी खत्म हो जाएगा. तो इसीलिए हमेशा, चाहे वो बिलियनियर अगर वैसे बनाया, नेपोटिज्म वगैरह भी अगर सोचो, वहां से अगर आया, स्टिल ही हैज टू बी दैट स्मार्ट कि वो मनी को अपने पास रख सके, यानी ही इज एबल टू डू विद दैट. हाँ जी अश्विनी, नेक्स्ट. Yeah, I think done with all questions. Lovely, lovely. Thank you so much, Ashwini. The thing that we feel that they are blessed, actually, we are equally blessed. The opportunities that we have, that they have in their life, we also have in our lives. So we are going to build this mindset in you that we are equally blessed. वही 24 घंटे उनके पास है, वही 24 घंटे हमारे पास है. वही चांद, सूरज, अर्थ, वाटर, एयर उनके पास उतना ही है जितना हमारे पास है. एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनका माइंडसेट है जो उनको बना रहा है. और अश्विनी, हमारा माइंडसेट भी हम लोगों को वहां पर ही लेकर जाएगा. आई एम श्योर अबाउट इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. Yeah, thank you. Okay, Poonam ji and Aanchal also want to share. We'll keep it a bit short. हाँ जी Poonam ji. Thank you for joining. It's night there and you are here. Thank you so much. Yes. Okay, the first was, when I think of rich people, my first thought is that they are fortunate. I wish I could be that rich so that I can do some good work for less fortunate people. This is always the case, and I do whenever, whatever I can. And second, while growing up, yes, my mom used to say, हाँ पैसे सेव करके रखो फॉर अ रेनी डे, एंड पैसे पेड़ों पर नहीं लगते. बट ये मेरी मम का था. बट इन माई चाइल्डहुड आई स्टेड विद माई दादी माँ. My 3 sisters were with my parents, and I stayed with my दादी माँ, and my नानका was also there. So I was a very pampered child, very pampered child. अम्बाला में मैं रहती थी, चंडीगढ़ मेरे पेरेंट्स थे, और मेरे को द बेस्ट. और उस टाइम चंडीगढ़ ऐसा लगता था अम्बाले वालों के लिए जैसे वो फॉरेन में है. तो मैं बड़ी अपने आप को बहुत नाक ऊंचा था मेरा, बहुत ज्यादा पैम्पर्ड थी. फ्रॉक्स बड़ी सुंदर पहनती थी. तो बचपन से ही मेरे दिमाग में ये डाला गया था कि आई एम वेरी वेल्दी. चाहे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, तो वो चीज ना वो फिर रही है. फिर मेरा पति भी थोड़ा सा था ऐसा ही जब हुए हैं, व्हेन आई गॉट मैरिड. तो मैंने वो चीज ना देखी नहीं है. पर मम्मा को एनी टाइम फाइनेंशियल स्ट्रगल मैंने नहीं देखा. चाहे हम लोग जैसी भी फैमिली से थे, तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी. हालांकि मम्मा कहते रहते थे कि पैसे पेड़ों पर नहीं लगते, पर हमने कभी वेस्ट नहीं करा था. ये सुना था उनसे सिर्फ. पर सेविंग का मम्मा ने, व्हेन आई गॉट मैरिड, व्हेन शी सॉ मी, व्हेन आई मूव्ड हियर, कि पैसे हम कमाते कैसे हैं और हम खर्च कैसे करते, तब मम्मा को होते थे कि मेरे लिए होता था. आई डोंट नो मेरी बहनों को उन्होंने कहा या नहीं, पर उन्होंने मेरे टेस्ट देखे थे कि मैं बहुत ज्यादा लेविश खर्च करने वाली हूँ एक्चुअली में. थैंक यू गॉड. तो मम्मा को थोड़ा होता था कि सेविंग करो. पर मेरे साथ ना प्रिया यही रहा है कि मेरे साथ सेविंग नहीं हुई. सेविंग नहीं हुई अभी भी. मेरे को सिर्फ वो कहते हैं ना, गिल्टी तो नहीं हुई खर्च करने में, मुझे नहीं होती है, क्योंकि मेरे को भगवान देता रहता है. एंड मैं फिर वो जो थोड़ा सा होता है, वो दीप्ति मैम ने तो बिल्कुल ही निकाल दिया. एग्जैक्टली यही मैं सुनना चाहती थी तेरे से दीदी.
ओके, लवली लवली। सो दिस इज योर माइंडसेट। तो आपका हाँ माइंडसेट में एक्चुअली वही है ना, हम लोग जो जर्नी में है ऑलरेडी, तो हमारे माइंडसेट में काफी चेंजेस आ चुके हैं। बट देन हाँ स्टिल फिर भी हम लोगों को कहीं कहीं पर लगता है कि देयर इज स्टिल लाइक लर्निंग कैन नेवर, it's all we like when I talk about myself I say that I'm yearning to learning, still I am learning, there is a lot to learn। अभी भी ऐसा है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है ना, तो इसीलिए मैंने हम लोग ये बोलते हैं कि अभी भी जहाँ पर थोड़ी बहुत ही कमी रह गई है ना, और सीखते हैं और अपने आप को, मानसिकता को और ज्यादा चेंज करते हैं उस हिसाब से। हाँ तो पर प्रिया मैंने ये देखा है कि गिल्टी कभी नहीं हुआ, वेस्ट भी नहीं हम्म किया। शायद हम्म लाइफस्टाइल ही ऐसा बनता गया कि पैसे आते थे तो जो मेरा था हम्म सर्कल उसमें, आई डोंट नो, कभी मैंने किसी को कॉपी नहीं किया, बट आई हैव लिव्ड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। बट सीइंग दिस नाउ, आई विल बी 60 नेक्स्ट ईयर। मैंने बहुत लोगों को देखा है, पिछले 27 सालों से मैं यहाँ पर हूँ। मैंने इतने लोगों के दिमाग खराब होते देख लिए हैं। मैक्सिमम वो कहती हैं, जैसे मनी, मेरी सिस्टर ने कहा कि उसने देखा है कि पीपल आर, जो उसने देखे हैं कि दे आर वेरी जेनरस। मैंने तो हम्म उल्टा देखा है यहाँ पर। यहाँ हम्म पर मैंने बिल्कुल उल्टा देखा। मैंने इतने हम्बल बैकग्राउंड से आए लोगों को कहाँ तक पहुंचते देखा, पर उनके सभी के ही आई कांट हम्म। इवन फाइंड। मेरी कुछ दोस्त हैं वेरी क्लोज टू मी, ठीक है, बाकियों के तो मैंने दिमाग ही खराब होते देख लिए हैं। नहीं दे आर मतलब यार सी, यहाँ पर पूनम जी यही है ना कि दैट हमारी जो फिट्स, मानसिकता होगी ना, दैट वही हम फिट्स लोगों नहीं है। को, हाँ हम लोगों को वहां पर वो, उस तो पे हम मैंने लोगों ने छोड़ कंट्रोल, दिया, इट्स पर अबाउट या आपने मैंने छोड़ दिया, छोड़ राइट। मैंने छोड़ दिया। हम्म। मैंने अपने 20 साल वाले ग्रुप्स को छोड़ दिया, बिकॉज आई डोंट मैच विद दैट माइंडसेट एनी मोर एनी या लॉन्गर। क्या ग्रेट। पहले भी नहीं था, पर पहले यही था कि नहीं ठीक है, थोड़ी देर के लिए हंसने के लिए चले जाते हैं। अब मुझे होता है कि थोड़ी सी हंसी के लिए नहीं हाँ, इट्स जाना, छोड़ो। एसोसिएशन मैटर्स है ना, वो हाँ, इट तो वो रियली छोड़ मैटर्स कि दिया। आप किसके साथ उठते बैठते हो। सो या हाँ, तो एंड थैंक यू आई सो फील मच। वेरी ग्रेटफुल एंड या ग्रेट व्हेन आई रिसीव मनी। ग्रेट यस, ग्रेट ग्रेट, थैंक लवली यू, लवली लवली, थैंक यू so much पूनम जी। थैंक यू। So lovely. Now we just take Aanchal and then I hand over the dice to Soumya for further. Yes, Aanchal, let us just go. Yeah. Okay, I'll keep it short. Mm-hmm. So first is when I think of rich people, I think that they are very wise. Wise in two ways. The way by which they are earning, जो उनका कमाने का तरीका है, उसमें भी वो wise हैं कि वो कमा पा रहे हैं. And दूसरी second thing is कि वो how they are spending. They can travel, so they have more experience in life. कहाँ कहाँ खर्च करना है तो उनको सोचना नहीं पड़ रहा. And I also feel that I also want to be rich. Yeah. Second is Lovely. when I was a kid, I have always seen that बहुत मेहनत करके पैसा कमाया जाता है. So it should be used on all the necessity things. Okay. And the third thing is I feel guilty when I overspend because I feel that मेरी सारी savings खत्म हो गई. ठीक है। And next is Okay. the one who have money is more happy and is more fulfilled in all the spheres of life. Oh, yes. Okay. Next is when I get money, I feel very happy and I always feel like multiplying it. Good, good, good. So guys, whatever thought you are circling on ना, जो भी अगर negative emotion को आप बार बार सोचते हो, you are circling around the negative emotion, that is actually acting as a firewall, एक दीवार बन के खड़ी हो जाती है आपके सामने। Abundance is, जैसे कि हम सभी अब बताए जा रहे हैं कि abundance is there for everyone. You can see the 5 elements in abundance. You can see everything, like air abundance में है, धरती माता abundance में है, everything is in abundance. Then only the thought that we are carrying, है ना, the belief, the wrong beliefs, the domesticated mind that we have from our out the beginning, only that is becoming the firewall. वो एक umbrella की तरह है। वो आना चाहता है, जैसे कि सनब्लॉक लगाते हैं ना हम लोग, सनब्लॉक लगाने से हमको लगता है कि सनरेज जो है ना हम लोगों को नुकसान पहुंचाए, तो हम सनब्लॉक लगा लेते हैं। तो सनब्लॉक लगाने से क्या होता है ना, आपको जो है वो विटामिन D3 आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो पाता, क्योंकि वो स्किन के थ्रू अब्सॉर्ब होगा। तो सेम वे अबंडेंस एक्चुअली वांट्स टू कम टू अस, बट हमारे बिलीफ के कारण, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, हमारे बिलीव्स के कारण वो पूरी तरह से हमारे पास आ नहीं पा रहा। Only we have to work on our belief and then we have to have this mindset of richness. Richness comes from mindset. वो कैश से नहीं आता richness, mindset करना पड़ता richness के लिए वैसा। और फिर देखो इसी तरीके से जो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी है, चाहे वो मुकेश अंबानी है, उनके पास वो mindset है, तभी वो वहां से आ पाए, है ना। उस चीज को मुकेश अंबानी उस चीज को जारी कर रख पाए, और धीरू भाई अंबानी ने अपना वेल्थ क्रिएट किया, जनरेट किया, सारा का सारा अपने आप से, अपने माइंडसेट के कारण, है ना। सो ओके, बिट्टी का भी हैंड है, बिट्टी विल जस्ट कीप इट शॉर्ट, है ना। और फिर हम लोग इसको करेंगे मैं बहुत शॉर्ट में ही बोलूंगी। हाँ, मैं थैंक यू जस्ट सो सिंपल सेंटेंसेस ही बोलूंगी जो आपने लिखे थे, वही फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। एंड आई थिंक रिच पीपल, माय फर्स्ट थॉट इज कितनी अच्छी लाइफ है, बन के बड़े मजे हैं,
लाइक ये था मेरा. एंड व्हेन आई वाज चाइल्ड, मनी इन अवर हाउस इज डिस्क्राइब्ड एज कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न, डोंट ओवर स्पेंड. ज्यादातर ये होता था. आई फील गिल्टी व्हेन आई फील गिल्टी जो पहले था वो था कि आई एम नॉट एबल टू बाय एनीथिंग आई वांट, तो आई फील गिल्टी कि मुझे ये चीज चाहिए थी, मुझे मिली नहीं बिकॉज हमारा कम है. सो आई इफ आई ओवरस्पेंड माय पेरेंट्स, आई फील गिल्टी कि अगर मैं ओवरस्पेंड कर देती थी और मेरे पेरेंट्स भी डिनाई करते थे मेरी विश को फुलफिल करने के लिए, तो भी मुझे गिल्ट फील होता था. आई बिलीव पीपल विद मनी आर वेरी कॉन्फिडेंट, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है. When I receive money, I usually feel very good, very confident. और अगर मैं वो खुद कमाऊंगी तो I want, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि I spend wherever I want. कि जैसे कई बार इंडिपेंडेंस है ना, फ्रीडम आ जाएगा, फ्रीडम टू स्पेंड वाली फीलिंग मैं यूजुअली चाहती हूँ फ्यूचर के लिए कि when I receive money. So you are already receiving money, Yeah, I am from all receiving over the money. world. Yeah, Yes, yeah, you are yeah. floating in the abundance. देखो पीछे भी इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतने Yes. सारा आकाश है, पूरा वाइड आकाश है. You are floating in abundance वो तो already. भी इस जर्नी में आने के बाद तो कभी ड्रेसेस को देख के भी बोलते ना, लगता था कि जैसे हम लोगों की थॉट क्या होता था लेडीज का ज्यादा कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैंने कहाँ पहना है, तो अब ज्यादा लगते हैं. वो तो फीलिंग आ चुकी है. Yeah. Lovely. Thank you so much. So sorted. Thank you so much, guys. So thank you for all the things that you have written, and thank you that you have shared all those things, है ना. तो इसीलिए हाँ, to all those, सौम्या ने शेयर कर दिया है जो अभी लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए, कि ये क्वेश्चंस हम लोगों ने पूछे थे और आप YouTube में देख सकोगे कि सबके आंसर्स क्या थे. आप इसके आंसर्स जल्दी से लिख लीजिएगा. और ये तो एट द एंड आई वुड जस्ट से कि मनी के लिए हमारे मन में जो ये बात है, अगर हमको ये लगता है कि पीपल जो है ना, जो वो लोग ब्लेस्ड होते हैं, डेफिनेटली ब्लेस्ड हैं, जो रिच हैं, ब्लेस्ड हैं, लेकिन उतने ही ब्लेस्ड हम लोग भी हैं. इस बात को हमेशा याद रखेंगे. जितनी अपॉर्चुनिटीज उनके पास है उतनी अपॉर्चुनिटीज ही हमारे पास है. कुछ भी कमी नहीं है, सिर्फ माइंडसेट की कमी है हमारे पास. अगर हमारे पास आज पैसा नहीं कमा रहा है तो, है ना.